Hello, students. A warm welcome to all of you in this special session of Pep Talks. Like always, we have an amazing achiever today among us, and I'll introduce him to you very soon. But before I start, let me wish all of you a lot of good health, and I really hope that all of you are safe and your families are also safe in these crazy times of this COVID pandemic. So, today among us is an amazing achiever of Vedantu, Vaibhav Bajaj. And with us also is Vikas Sudhi sir, who has been mentoring and teaching Vaibhav for the Olympiad, the Chemistry Olympiad. So Vaibhav Bajaj has secured All India rank 26 in Indian National Chemistry Olympiad and has been selected for OSC camp, that is Orientation cum Selection Camp. सो बच्चों इस कैंप में क्या होता है, इस कैंप में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इंडिया में अराउंड 50-60 बच्चे सेलेक्ट होते हैं इस कैंप में, एंड they are groomed and prepared. Out of these students, 4 to 6 students will be selected to represent country, that is India, at the international level in International Chemistry Olympiad. This is an amazing feat. Vaibhav is among the top students in the country, and I would like to congratulate Vaibhav for this amazing achievement. So Vaibhav, a lot of congratulations from all of us, entire Vedantu, entire team, all the team of teachers and the entire team of Vedantu for your amazing achievement, and we wish you all the very best for your preparation ahead and for your selection in the International Chemistry Olympiad. Thank you, sir. विकास सर, आप कुछ बताना चाहेंगे वैभव के बारे में before we start getting into discussing a lot of these queries that all of us have, all these children have, which they want to get answers from Vaibhav? वैभव ने बेसिकली दोनों लेवल्स में ही बहुत अच्छा किया सर। फर्स्ट लेवल में इसका 110 स्कोर था आउट ऑफ 120 और सेकंड लेवल में भी इसका सर 34.5 स्कोर था। तो दोनों लेवल्स में ही बच्चे ने सर मतलब मैं कहूँगा शानदार परफॉर्मेंस दी। अमेजिंग। सो वैभव, काफी हम सब आपके बारे में डिस्कस करते रहते हैं वेदांतु टीम में, दैट यू नो हाउ अमेजिंग दैट यू हैव परफॉर्म्ड, एंड इट्स अमेजिंग टू सी दैट यू नो प्योरली ऑनलाइन प्रिपरेशन करके आप इस लेवल तक लेके आ पाए. सो दिस इज रियली रियली अमेजिंग. सो वैभव, on the behalf of all these children, we will ask a few questions to you, and it will be really awesome अगर आप उसके आंसर्स दे पाए, बाकी बच्चों को एनलाइटन कर पाए, एनकरेज कर पाए. ठीक है? So let me start with our first question, right? So how did you do well in this Olympiad? What's that secret ingredient that is required for preparing at the Olympiad level, Vaibhav? सर सारा क्रेडिट जो है ना वो विकास सर को जाता है. उन्होंने ही मुझे बहुत अच्छी तरह तैयारी करवाई पूरे ओलंपियाड के लिए. बेसिक से लेके एकदम डीप टॉपिक्स तक बहुत अच्छा करवाया उन्होंने. तो मेरे ख्याल से सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक मेंटर होना चाहिए आपके पास, जो हमेशा आपके साथ लगा रहे, आपको छोड़े नहीं. वेरी ट्रू. आई मीन आई एग्री विथ यू दैट इस लेवल की प्रिपरेशन में एक मेंटर का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है, right? Because you really don't know what to prepare, how to prepare, to what depth should we go, what type of question should you attempt, right, Vaibhav? Yes, sir. Awesome. So in your entire preparation, Vaibhav, तो मुझे बताओ कि आपने preparation कब शुरू की, and what is the role of Vedantu, right, in your preparation of these Olympiads? So last year around May मुझे कॉल आई थी वेदांतु से, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था. विकास सर ने बात की थी कि मैं उनके साथ स्टडी करूं केमिस्ट्री. तो तब मैंने कुछ क्लासेस लगाई थी, तो सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे टीचिंग में. तो उस टाइम से मेरी प्रिपरेशन शुरू करवाई थी फिर सर ने. तो सर ने कहा था कि मतलब अगर मैं चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं INCHO क्वालिफाई. तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से ट्रेनिंग देनी शुरू की और हमारी क्लासेस लगभग रोज ही लगती थी, 7 days a week. और टेस्ट्स भी सर अपने हाथ से बना के लेते थे. तो वो सर की बहुत मेहनत लगी और उसी से अच्छा कर पाया मैं. Amazing, विकास सर. So lots of congratulations to you as well. आपकी इस amazing mentorship का रिजल्ट है वैभव का ये achievement, and we wish you both of you all the very best, right? So we for Vaibhav, we for Vikas sir, and we for Vedantu. Amazing, right? So वैभव एंड विकास सर, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन किस एज से शुरू कर देनी चाहिए? फ्रॉम व्हिच ग्रेड शुड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर ओलंपियाड्स? जैसे कि यदि बच्चे ने 10th में मतलब +1 का किया हुआ केमिस्ट्री,
उसने यदि +1 में +2 तक कर ली है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक सेक्शंस और इनऑर्गेनिक थोड़े लेवल्स के किए हैं, फिर तो बच्चा +1 में सब फर्स्ट लेवल तो बड़ा इजीली क्लियर कर जाएगा अच्छे रैंक से, और सेकंड लेवल में भी अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है सर कि लास्ट के 3 महीने में कि टीचर कितने एफर्ट्स उस बच्चे के ऊपर डालते हैं। हम जब मैंने सर वैभव से शुरू किया तो आप वैभव ने अभी बताया आपको कि मतलब जब मुझे फर्स्ट डे आया था थोड़ा डाइसी था सर, मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं, क्योंकि बच्चे को लगता था ऑनलाइन, और मुझे पता सर वेदांतु की सिस्टम से हमें इतनी सपोर्ट मिली है, मैं आपको सही बात बताऊं, इतनी सपोर्ट हम सोच नहीं सकते जितनी सिस्टम ने हमें सपोर्ट दी है। हम अपने तरीके से लेक्चर्स लेते थे, खुले लेक्चर थे, हम सर रात को 3-3 बजे तक सुबह बैठे, और लास्ट के 1 महीना सर हमें नहीं पता, कि इसको नहीं पता, मुझे नहीं पता सर कि दिन कब है रात कब है, और वेदांतु सिस्टम की फुल सपोर्ट। और सबसे पहले सर मैं सिस्टम को ही थैंकफुल करता हूँ कि इतनी अच्छी सपोर्ट हमें मिली है, उसके बेस पे ही हम ऐसा रिजल्ट ले पाए। यदि हमें सिस्टम सपोर्ट ना करता तो सर हम इतना रिजल्ट ऑनलाइन में नहीं ले सकते। और दूसरी बात है सर कि मतलब +2 में यदि बच्चा अच्छा, मतलब +2 में सर उतना ओलंपियाड से जितना पैनिक उतना है नहीं है सर, डिफिकल्ट नहीं है, बच्चा अच्छा तैयारी करे, टीचर अच्छे एफर्ट्स लगाए, और तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस साल हम और अच्छा सर आगे इससे भी अच्छा करेंगे, ताकि हम वेदांतु को और ऊपर लेके जाएं। पर बात यह है कि सर वैभव की बहुत मेहनत है इसमें, ये नहीं कहूंगा, जब बच्चा भी, यदि मैं जागा हूँ सर तो बच्चा भी मेरे साथ एफर्ट्स, तो जो टीचर और स्टूडेंट की सर कंबाइन एफर्ट्स है। तो बच्चों, आप जो सुन रहे हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि देखो, टीचर्स कैन मेंटर यू, वी कैन पुट आवर हार्ड वर्क बिहाइंड यू, बट फाइनली बच्चों मेहनत आपको खुद को करनी है। सो कोई भी टारगेट बड़ा या छोटा नहीं है, इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड सोल बिहाइंड इट, इफ़ यू ट्रस्ट योर टीचर, इफ़ यू ट्रस्ट द सिस्टम, राइट, और बस जो टीचर्स आपके बता रहे हैं वो आप करते जाएं, तो कोई भी टारगेट छोटा नहीं है। सो एंड वैभव and Vikas sir are the live examples of this as a student and mentor and teacher here. So amazing. Vaibhav, so एक चीज बताओ, so would you consider yourself as a born intelligent child, या फिर you have seen your performance improve at a certain age, या कोई और ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको लग रहा है जिससे कि आप इस लेवल पे आप आ पाए अभी तक? सर अगर मैं सच बोलूं तो लास्ट ईयर तक ना केमिस्ट्री मेरा सबसे वीक था, फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रांग थे, पर केमिस्ट्री में मुझे स्कोर अच्छे नहीं आते थे जनरली। तो जब से विकास सर ने पढ़ाना शुरू किया तो सर तभी से मतलब धीरे धीरे मेरे स्कोर्स इंप्रूव होने लगे, क्योंकि इनके पढ़ाने का स्टाइल काफी अच्छा था, और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते थे, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को याद करने के जो नए तरीके ये बताते थे, तो उसी से मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगी मेरे में। और जब मैं रेगुलरली क्लासेस जैसे 7 days a week ही लगाता था, तो प्रैक्टिस भी काफी हुई मेरी, तो उसी से ही अच्छा कर पाया मैं। सो वैभव, तो बच्चे पूछते हैं कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए हमें बहुत ब्रिलियंट या जीनियस होना जरूरी है? नहीं सर, इतना भी मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो बॉर्न टैलेंट होता है उनमें, वो तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन ओलंपियाड के लिए एक तो सर मेंटर अच्छा होना चाहिए, और बच्चे की खुद की मेहनत भी काफी होनी चाहिए। अच्छा वैभव, एक और चीज बताओ, व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट नाउ? गोइंग अहेड, व्हाट्स योर टारगेट? सर अभी तो कैंप लगेगा, उसमें ट्राई तो कर रहा हूँ कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ इंडियन टीम के लिए, लेकिन अभी वो पक्का नहीं है कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि कोरोना काफी बढ़ गया है। उसके बाद तो मेरा जेईई एडवांस टारगेट है। What ranks are you targeting, Vaibhav? Sir, single digit. Single digit, that's the spirit, that's the spirit. So विकास सर, मेरी हम पूरी टीम की तरफ से lots of best wishes to you for your target उससे नीचे देखे नहीं आना कभी भी। Awesome, great. So वैभव, एक और चीज बताओ, so वेदांतु में किस बैच में enrolled हो? In which batch are you enrolled in at वेदांतु? So मैं वेदांतु के एकलव्य बैच में enrolled हूँ। इस बैच में मैं और मेरी तरह कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्यादा डीप लर्निंग और टॉप रैंक्स के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है, और हर एक टॉपिक में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाए जाते हैं उनसे। विकास सर, आप कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? सर एकलव्य बैच में जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सर काफी अच्छे हैं, और हम उम्मीद करते हैं सर कि इस बैच से हम काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। और वैभव ने जैसे आपको बताया कि 110 मेरा टारगेट है, तो डेफिनेटली सर जो बच्चे में इतना कैलिबर है, जब मेहनत करेगा और टीचर उसके साथ बैठेगा तो डेफिनेटली सर अच्छा रैंक प्रोड्यूस करे।
awesome. और So मैं yes sir. दूसरी बात सर, जैसे वैभव ने बताया, इसके मदर से मेरी थोड़े से पहले बात हुई थी, 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने यही बात मुझे बताई थी कि सर इसकी केमिस्ट्री +1 में सबसे वीक है, और अब ये केमिस्ट्री ओलंपियाड ही क्रैक कर रहा है। हम सब ये देख सकते हैं कि यदि हम बच्चे के ऊपर एफर्ट डालें और ऑनलाइन सिस्टम में भी हम ऐसा रिजल्ट लेके आ सकते हैं जो ऑफलाइन से आता है, ये हमारे लिए प्लस। यदि हमने बच्चे के मेहनत की है वेदांतु सिस्टम की तरफ से, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ऑनलाइन में भी रिजल्ट आएगा डेफिनेटली, इससे बढ़िया रिजल्ट हम और अच्छा रिजल्ट हमने साथ, क्योंकि इस साल हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमने वैभव का रिजल्ट दिया, तो नेक्स्ट ईयर और अच्छा रिजल्ट। टोटली सर। और यहीं पे बच्चों के लिए एक और मैसेज। सो आप सब बच्चों जानते हो कि यू ऑल एस्पायर फॉर एकलव्य बैच, एंड एकलव्य बैच यहाँ पे वेदांतु के जो इंटरनली एनरोल्ड बच्चे हैं वो भी इसका पार्ट है, और एकलव्य बैच हम बाकी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी ओपन करते हैं, राइट? बट द चिल्ड्रन हु आर एट अ सर्टेन लेवल प्लस हु आर रेडी टू पुट इन दैट लेवल ऑफ हार्ड वर्क, तो मैसेज बच्चों ये है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो, देन now Vedantu online system and our teaching has proven that आप top notch level पे, highest level पे prepare करके ranks ला सकते हो online भी, right? And I think you all should gain a lot of confidence out of it, especially in these times जब आपके पास options बहुत limited हो गए, right? So you know if you're part of Vedantu, if you're part of Eklavya batch, if you're part of any batch at Vedantu, have that confidence कि आप कर सकते हो, आप करोगे, यू कैन डू इट। सो वैभव, बहुत बच्चों का डाउट होता है कि जेई या नीट की प्रिपरेशन के साथ में ओलंपियाड की प्रिपरेशन कैसे कर पाए? मतलब इज इट रियली पॉसिबल टू डू ओलंपियाड प्रिपरेशन along with doing JEE and NEET preparation? सर जेई में या नीट में एक बेसिक लेवल तो चाहिए होता है सब्जेक्ट का, तो ओलंपियाड में बस उसी लेवल को हम थोड़ा और ऊपर जाके स्टडी करते हैं, डीप में जाते हैं टॉपिक्स के। तो जितना हम ओलंपियाड के लिए जैसे मैंने प्रिपेयर किया केमिस्ट्री के लिए, तो उतना मुझे वो जेई में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि टॉपिक्स मोस्टली सिमिलर होते हैं, लेकिन जब हम डीप में जाके स्टडी करते हैं तो हम क्वेश्चंस को और अच्छी तरह समझ पाते हैं और इजीली क्रैक कर पाते हैं पेपर में। तो ओलंपियाड्स की स्टडी करना पॉसिबल है, और मैं तो कहता हूँ हर एक बच्चे को ट्राई जरूर करना चाहिए, ताकि एक लेवल अच्छा बन जाए बच्चे का, और वो इजीली फिर जेई के क्वेश्चंस भी क्रैक कर पाएगा। एंड वैभव, ये मेरा क्वेश्चन, तो वैसे आपने केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया है, डू यू कैन यू से द सेम थिंग फॉर द मैथ ओलंपियाड एज वेल? क्योंकि मैंने सुना है कि मैथ ओलंपियाड, मतलब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आई हैव माय ओपिनियंस ऑफ कोर्स, बट मैथ्स ओलंपियाड्स एंड जेई की प्रिपरेशन 11th-12th में, डू दे आल्सो गो इन सिंक, या वहां पे कुछ डिसोनेंस? मैथ्स ओलंपियाड में कुछ टॉपिक्स हैं जो जेई में नहीं आते, जैसे नंबर थ्योरी के हैं कई सारे, और ज्योमेट्री में भी वहां पे प्योर ज्योमेट्री चलती है काफी अच्छी, वो भी कई सारी थ्योरम्स हैं, तो वो मैंने भी इनमो दिया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो जेई के क्वेश्चन में मैंने खुद लगा के सॉल्व किए, उनसे काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, या फिर कोई यूक्लिडियन प्लेन्स में जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो अगर मैं वो ओलंपियाड लेवल वाले थ्योरम्स लगा के करता हूँ तो काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो काफी अगर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करोगे मैथ्स ओलंपियाड की, डेफिनेटली हेल्प तो करेगा, लेकिन मैथ्स को फिर भी क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जेई में वो वाले सारे टॉपिक्स नहीं आते। Completely agree, Vaibhav. So this is, Vaibhav ने जो बोला बिल्कुल exactly that's true. So chemistry Olympiad and physics Olympiad still are to a large extent in line with your JEE preparation. Math Olympiad में कुछ topics हैं जो कि थोड़े से अलग से होते हैं, approach different होती है. So if you're preparing for Maths Olympiad, so do get in touch with your teachers to discuss if you're in class 11th or 12th. So how do you plan your studies, right? So यहाँ पे mentorship भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो ये प्लान करने के लिए कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में कैसे इन सिंक की जाए। बट एज वैभव सर, आई टोटली एग्री कि प्रिपरेशन करने से आपका लेवल एनहांसमेंट डेफिनेटली होता है, राइट? सो बोलते हैं ना कि इफ यू सेट योर आईज एट हेवन यू विल एटलीस्ट रीच द स्काई, राइट? तो जितना आप अपना लेवल बढ़ाओगे,
ये वाला जेई का जो लेवल है आपके लिए सिंपल लगने लग जाएगा आपको। सो बिल्कुल सही बात। सो विकास सर, एक और चीज पूछते हैं अपन वैभव से, जो बहुत बच्चे पूछना चाहते हैं। विकास कितने घंटे पढ़ते थे? 18 घंटे, 24 घंटे? ये बच्चे हमेशा पूछते हैं कि ये जो अचीवर्स होते हैं ये क्या दिन भर पढ़ते रहते हैं? सो आप कितनी देर पढ़ते थे? व्हाट इज योर, इनफैक्ट कितने घंटे पढ़ते हो? आपकी प्रोफेशन तो भी चल रही है। एंड व्हाट डू यू डू टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ इन बिटवीन? फिर पढ़ाई का तो ऐसे मतलब चलती रहती है पूरा दिन ही, क्योंकि जेई में सिलेबस काफी है, तो रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए होती है रेगुलरली। तो जब मैं जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा था, तब तो विकास सर के साथ सुबह 4-4 बजे तक क्लासेस रहती थी मेरी। तो वो तो टाइम का पता ही नहीं लगता था सर कब 4 बज गए हैं। उसमें तो काफी अच्छा लगता था। और अभी भी मैं पढ़ता हूँ पूरा दिन नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेज कर रहे हैं रात को जल्दी, क्योंकि एडवांस सुबह होगा तो बॉडी क्लॉक थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है। तो अभी तो वैभव बहुत ज्यादा आपका इंटेंस टाइम आ गया, बिकॉज एग्जाम बस दे आर राइट अराउंड द कॉर्नर, राइट? बट जब आप 11th और 12th में थे, राइट, सो तो आपका 11th में स्टडी शेड्यूल कैसा था? 12th में कैसा हुआ? इट विल रियली, सो योर वर्ड्स विल रियली हेल्प अदर स्टूडेंट्स जो इस सेशन, जो आपकी टॉक को सुन रहे हैं, टू हेल्प देम प्रिपेयर बेटर। तो 11th और 12th में पहले स्टार्टिंग में तो क्लासेस रहती थी, तो पूरा दिन पहले क्लासेस चलती थी, और शाम को रात को मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता था, रिवाइज करता था जो जो करवाया है। तो 11th में तो मोस्टली यही हुआ है, और बीच में जो ब्रेक्स वगैरह जैसे मिल जाती थी 1-2 दिन की छुट्टी, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह मैं सॉल्व करता था। 12th में आके जैसे सिलेबस खत्म हो गया मेरा, उसके बाद एक तो विकास सर ने ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाना शुरू किया, तो साथ में फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किया करता था रोज, जो बुक से, और रिवीजन रेगुलरली करनी पड़ती है 1-2 हफ्ते बाद, वरना फिर थोड़े कंसेप्ट्स वगैरह भूल जाते हैं। तो एक तो रिवीजन चाहिए रेगुलरली, और थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हर रोज। Got it. Awesome. Thanks a lot, Vaibhav. On behalf of all the children, all the students who are listening to you. और यहाँ पे मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये मेरा भी क्वेश्चन है। जब मैं छोटा था तो मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी केमिस्ट्री। और वो एक डर सा बैठ गया था। इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही इतना डर था कि मैं जेई के एग्जाम में भी आधी इनऑर्गेनिक छोड़ के गया था। और यही कई बच्चों के साथ भी होता है। दो दे आर गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, बट केमिस्ट्री को बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, राइट? सो वैभव, आपकी क्या गाइडेंस है उसमें बच्चों को? एंड विकास सर, आपकी भी क्या गाइडेंस है बच्चों को उसमें, ऐसे बच्चों को, मेरे जैसे बच्चों के लिए? लास्ट ईयर मेरा भी लगभग ऐसा ही हाल था। केमिस्ट्री मेरी सबसे ज्यादा ही वीक थी। तो उस टाइम पे जैसे विकास सर ने पढ़ाना शुरू किया मुझे, तो इनऑर्गेनिक तो सर आधी से ज्यादा क्लास में ही हमें याद करवा देते थे। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो काफी अच्छा लगता था हमें। और ऑर्गेनिक में सर ने हमें मैकेनिस्टिक अप्रोच इतनी अच्छी रखवाई ना, कि कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आप ट्विस्ट भी डाल देते क्वेश्चन पे, मैकेनिज्म से अगर आप चलते हो तो हो जाते हैं सॉल्व। मतलब रटना नहीं पड़ता हर एक चीज को। वो रटने वाले काम में पहले बच्चों को लगता है जैसे इनऑर्गेनिक पूरी रटने वाली है, वो उतना रटने वाला नहीं रहता। कई सारे पॉइंट्स इसमें कंसेप्चुअल है, जो अगर आप अच्छे लेवल पे जाके पढ़ोगे ना, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। Got it. So मतलब बच्चों को, मतलब जो डरते भी हैं, they can still pick it up, right? एक राइट माइंडसेट से अगर आप अप्रोच करोगे सर, तो हो जाती है केमिस्ट्री। मुश्किल नहीं है इतना कुछ। बच्चों, ले लो कॉन्फिडेंस थोड़ा। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ठीक है, मैथ्स कितनी भी कर लो, कोई भरोसा नहीं है। यू रियली आर नॉट श्योर व्हाट हाउ मेनी मार्क्स विल यू गेट इन योर जेई पेपर, बट केमिस्ट्री, इफ यू हैव डन इट वेल, एंड एज वैभव सजेस्टेड, if you actually learn it in the right approach, with the right approach, then you can actually master it and score very, very high. Vikas sir, what's your guidance and suggestion on this? सर ऐसे कि जो जैसे जेई एडवांस से पहले मैं सिर्फ जनरल बात करूं तो सर स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। आपकी कैसी टेस्टिंग्स हो रही हैं, आप किस लेवल के क्वेश्चंस टेस्ट में कर रहे हो, टीचर आपके किस ओरिजिनलिटी से क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, ये सारे सर 3 महीने पहले मैटर करते हैं। क्योंकि फिजिकल सेक्शन जो होता है सर वो हर बच्चा अटेंड कर जाता है, आराम से कर लेता है, बस वो कैलकुलेशन एरर हो तो वो वहां पर मार खाएगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो है सर डोमिनेटिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक
प्ले कर। हम कहते हैं सर इनऑर्गेनिक प्रोग्रामिंग, मैं मानता हूँ सर रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं, इसमें कोई भी नहीं है, और उसको भी सर स्ट्रेटजी से किया जाए तो हो जाते हैं आराम से। और दूसरा सर मैं आपको एक ओलंपियाड की बात बताता हूँ, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या यही एडवांस की तैयारी को फर्क पड़ेगा, तो ऐसे सर पिछले साल हमें भी चैलेंजेस फेस करने को मिले। कई बच्चों ने हमें कहा सर ओलंपियाड से हमारा आईआईटी तो नहीं एडवांस होगा इफेक्ट, तो मैंने उनको बड़ा समझाया सर कि इसमें कोई नहीं होता है, क्योंकि सर जब वैभव ने इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि जब आप एक बेस करोगे सर, फर्स्ट बेस इज आईआईटी, उसके अगला बेस सर ओलंपियाड। यदि आप आईआईटी करोगे सर, अच्छे मैकेनिज्म्स करोगे, तो आप ओलंपियाड में और मैकेनिस्टिक अप्रोच से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक है सर, ओलंपियाड में बहुत मेजर सेक्शन गिना जाता है, वो टॉपिक जो आपका वो इनऑर्गेनिक का सेक्शन है। अब मैं क्या कहूंगा कि ओलंपियाड वाले क्यों डाल रहे हैं सर, उसमें भी लॉजिकल क्वेश्चंस डालते हैं सर। आईआईटी में भी सर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं है कि आप जेईई मेंस और एडवांस के पेपर को सर डिफरेंट तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ये भी नहीं है, मेंस का तो सर पेपर अलग होता है, एडवांस का पेपर सर स्ट्रेटजी से सॉल्व करना पड़ता है। ये लास्ट के जो 3 महीने होते हैं सर, ये बहुत मैटर करते हैं जेईई एडवांस के लिए कि आप किस स्ट्रेटजी से उस बच्चे के साथ जुड़े हैं। खास करके मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ तो बहुत मैटर करता है सर, ये चीज है। बाकी सर ऐसी बात नहीं है कि इनऑर्गेनिक में भी सर देखिए स्ट्रेटजी होती है, करने वाले सर पूरे नंबर लेके जाते हैं, तो ये चीज। ट्रू ट्रू। सो आई जस्ट विश विकास सर आप होते जब मैं मेरे टीचर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। या सो really thanks a lot for giving your suggestions and thoughts on this subject. It's very very important for children. So Vaibhav, एक और चीज डिस्कस करते हैं which is again very important in my mind for Olympiad preparation. But आप बताइए, so what is the role of solving previous year tests and question papers for the preparation of Olympiad? So previous year के जो questions और test papers हैं उनको सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर ओलंपियाड प्रिपरेशन? तो ओलंपियाड्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने खुद 2008 से 20 तक के सारे पेपर सॉल्व किए थे, और वो भी टाइम फ्रेम में। मतलब 3 घंटे का एग्जाम था तो 3 घंटे में ही देना है, क्योंकि अगर आप वैसे पेपर पकड़ के देते हो तो एक रिलैक्स माइंड से देते हो, तो क्वेश्चंस देखते हो, साथ ही सोल्यूशन देखते हो, पता लग जाता है हाँ हो रहा है, तो आपको लगता है आपको आता है। लेकिन जब आप उसी टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करते हो तब पता लगता है कि आप किस लेवल की अभी तक तैयारी हुई है और कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सर साथ में मुझे पता लगा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं और कौन से सेक्शन की सबसे ज्यादा वेटेज है। जैसे उस हर एक में ऑर्गेनिक के हमेशा 2 क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद इनऑर्गेनिक के भी 1.5 क्वेश्चंस आते थे, और फिजिकल कम आती थी थोड़ी। तो उससे फिर मैंने ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान दिया, जो मैकेनिज्म्स वगैरह थे वो ज्यादा डीप स्टडी करवाए सर ने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत बड़ा है, वो जरूर हर एक बच्चे को करने चाहिए। मैं जहाँ पर सर एक बात शेयर करता हूँ, मैंने इनको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन ओलंपियाड का INCHO का सितंबर में एक क्वेश्चन दिया सर। मैंने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप। ये सर मतलब डर गए कि सर इतने लंबे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैंने कहा 40 मिनट्स लो, आप इसको सोचो। क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा था सर, तो मैंने उसके जस्ट खत्म हुआ तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन सॉल्व करना, आपने 40 मिनट्स का टाइम ले लिया। ये सर इतने पैनिक हो गए सर, इतना टफ पेपर होता है। तो जब हमने पेपर स्टार्ट करने शुरू किए सर, हमने 15 दिसंबर को अपना फर्स्ट पेपर खोल लिया, और हमने लास्ट डे तक हमने सर 14 पेपर्स, अराउंड 13 या 14 पेपर्स हमने कंप्लीट किए सर। और एक पेपर को करने को सर 3 घंटे लगते थे, उसकी डिस्कशन को सर 5 से 6 घंटे लग जाते थे। मतलब डिस्कशन में ज्यादा टाइम लगता था, मतलब क्योंकि सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के, तो लंबा क्वेश्चन होता है। मतलब आप ये देखिए कि मतलब वो बच्चा जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको दिया तो वो बच्चा डरा थोड़ा सा, पर जब उसके पेपर में वो क्वेश्चंस किए सारे तो बच्चे के बड़े अच्छे नंबर आए। और आप बिलीव करें सर, वैभव ने हर पेपर में, जो हम पिछले साल के कट ऑफ भी ना साथ में रखते थे, और देखिए कई हमें कहते थे ऑनलाइन में सब्जेक्टिव पेपर आप करा रहे हो, तो हमने टाइम फिक्स किया हुआ था सर, रात को 9 बजे या 8 बजे हमने पेपर देना है, और 11 यदि 8 बजे पेपर दें, 11 बजे इसका सबमिशन होगा हमारे पास पेपर। यदि 2 मिनट भी इसने लेट दिया तो ना डिस्कशन होगी पेपर की, ना पेपर की मार्किंग। इनके लिए कंडीशन थी इसने पूरा टाइम पे, और हम पिछली कट ऑफ से मैच करते थे, और हम देखते थे कि हर कट इसने हर पेपर में पिछले कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर ही लिए।
तो यहाँ से हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ ये बच्चा तो हर पेपर में कर रहा है, एक भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें इसकी कट ऑफ से नीचे नंबर गए, तो ये प्लस पॉइंट था। हमने लास्ट के 1.5 मंथ पेपर्स ही सॉल्व किए हैं सर बेसिकली, और कुछ नहीं किया। लास्ट के मतलब 1.5 महीना हमने पेपर्स के लिए रखा। अमेजिंग अमेजिंग, आई मीन दैट रियली हेल्प्स चिल्ड्रन कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स। ब्रिलियंट। एंड वैभव, सो नाइस टू hear about the hard work that you have put in what way for preparing for Olympiads। रात के 11 बजे आप पेपर सबमिट कर रहे हो, राइट? डिस्कशंस भी हो रहे हैं। आपने बताया कि you were preparing with विकास सर till 4 in the morning at times। phenomenal। बच्चों, ये होता है मेहनत, इसे बोलते हैं डेडिकेशन। दिस इज द डेडिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट एंड डेडिकेशन ऑफ अ टीचर, एंड दैट इज व्हेन द अचीवमेंट्स हैपन। बच्चों, कोई जादू नहीं है। जो आप लोग कई बार बोलते हो ना कि अरे ओलंपियाड तो उनका क्लियर होता है जो बहुत ब्रेनी है। बट ब्रेन इज समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद, बट व्हाट यू डू विद इट इज द रियल अचीवमेंट। ठीक है, हम सब कुछ टैलेंट लेके पैदा होते हैं, बट हम करते क्या उस टैलेंट के साथ इज द रियल अचीवमेंट ऑफ लाइफ, राइट? ठीक है, एंड आई थिंक वी हैव लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। अच्छा वैभव, एक और चीज बताओ, डिड यू आल्सो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स, और वाज इट अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग? नहीं सर, मजा आता था ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो थे उनके काफी इंटरेस्टिंग होते थे। तो जो नई नई हम चीजें सीखते थे, जो नए मैकेनिज्म्स खास करके ऑर्गेनिक में हम पता लगते थे, वो मजा भी आता था करने में। तो बीच में एक टाइम पे लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब तो फिर तब थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन जैसे ब्रेक वगैरह ली थी, उसके बाद दोबारा किया तो फिर अच्छा लगने लगा काफी। So, विकास सर एंड वैभव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, दे एक्चुअली मेक यू थिंक वेरी डीप एंड एट टाइम नॉन कन्वेंशनल वे। और हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ, राइट, अगर आप फ्यूचर में साइंस में डीप जाएंगे या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो when you prepare for Olympiad, actually you're preparing for life in solving the toughest problems in life that will be posed to you. Correct me if I'm wrong, विकास सर एंड वैभव। सर इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा सर। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या होता है, पहले मैं एनएससीसी की तैयारी करूं फर्स्ट लेवल की, उसके बाद मैं आईएनसीए की तरफ जाऊं। हमने सर वैभव भी बैठा जहाँ पर, हमने सर 15 जनवरी को मैंने वैभव से कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव का कोई पेपर शुरू करें, फर्स्ट लेवल के लिए नहीं करना। हमने सर 15 जनवरी तक कोई ऑब्जेक्टिव का पेपर नहीं किया, और आप बिलीव करें सर, हमने 5 या 6 पेपर एनएससीसी के सॉल्व किए हैं। और उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में भी इस बार तक जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स, फर्स्ट लेवल भी बहुत टफ था एज कंपेयर टू प्रीवियस, क्योंकि फर्स्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ था सब पेपर का ऑब्जेक्टिव का, इन्होंने मोर देन 1 डाला। पहले केमिस्ट्री में सिंगल ऑप्शन आते हैं, अब उसमें देखिए सर हमारा बेस, बच्चे का बेस स्ट्रांग हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो ऑब्जेक्टिव में भी नंबर लेके जाए। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सारा टाइम ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं, सेकंड लेवल को टाइम कम डिवोट करते हैं। आपको सेकंड लेवल के लिए भी स्टार्टिंग से अपनी तैयारी रखनी है। कांसेप्ट तो सर एक बार ही बनानी है। कई बार होता है कि हाँ जी ये इजी है, ये टफ इजी कुछ नहीं होता। अब मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनका फर्स्ट लेवल ही नहीं हुआ क्लियर, हो सकता है सेकंड लेवल उनका अच्छा हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ऐसा बच्चा भी होगा। तो यदि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप दोनों लेवल्स की तैयारी साथ कर सकते हैं। That's a great suggestion for all of you बच्चों। ठीक है, सर ने बताया कि देखिए फाइनली आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फाइनली आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, राइट? सो लेवल डजंट मैटर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज, सर आपने इस बात को टच अपॉन किया, मैं इसे वापस से बच्चों के रेफरेंस के लिए पूछ लेता हूँ, दैट यू नो दिस ईयर देयर वाज अ न्यू पैटर्न ऑफ ओलंपियाड्स, राइट? So was it tougher? I think objective pattern भी आ गया. So was it tougher for the students as compared to the previous year questions? और वैभव ने इस बीच में ये भी बताया था कि previous year papers को solve करना बहुत helpful है. So previous year papers को भी solve किया, but इस साल pattern different था. So did that pose a big challenge for you? सर ऐसे था, tougher इसलिए था कि एक ही दिन में आपने 3 घंटे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की स्ट्रेटजीज 3 घंटे में बनानी है। आगे क्या होता था, नवंबर में ऑब्जेक्टिव होता था, उसके बाद 2 महीने का बच्चे को टाइम मिलता, तो इस पर टाइम बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरा मैंने अभी आपको कहा सर कि पैटर्न भी चेंज हुआ ऑब्जेक्टिव का, इन्होंने मोर देन 1 डाला।
हमारे पास सब्जेक्ट मोर देन वन का कोई नहीं था। हम तो यही एडवांस के बेस पे जो मोर देन वन थे नॉर्मली बच्चे को ही कहा था कि हमने आप तैयारी कर लो, पर बेसिकली सर हमने ज्यादा फर्स्ट पेपर को नहीं फोकस किया था, क्योंकि यदि हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है सर तो आपका फर्स्ट पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। मेन फोकस ही हमारा INCHO के ऊपर था कि यदि आपको कैंप मिलता सर, ओलंपियाड का मीनिंग ही कैंप है, आपके कैंप में सिलेक्शन हुई कि फर्स्ट लेवल में आप 120 में 120 भी ले जाएंगे सर तो उसका कोई फायदा जब तक आपका सेकंड लेवल नहीं। एग्जैक्टली फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल से इकट्ठा होने से इस पर पेपर से सेकंड भी बहुत टफ है केमिस्ट्री में, पर्टिकुलर केमिस्ट्री में। फर्स्ट लेवल और आप मेरिट देखें सर, मतलब आप बाकी ओलंपियाड से कंपेयर करें तो पेपर टफ होने के कारण थोड़ी मेरिट नीचे गई, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो पेपर टफ था। यदि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंपेयर करूं तो सर फिजिक्स की मेरिट ऊपर थी। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली मैंने बच्चों से बात तो सर मैं सारे ओलंपियाड्स के रिव्यू लेता रहता हूँ, तो लेवल से भी मैंने पूछा कि तेरे को फिजिक्स इजी लगा कि केमिस्ट्री इजी लगा, तो इसने भी मुझे कहा कि फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी था एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो उसमें उस हिसाब से सर मेरिट ऊपर गई, इसमें मेरिट नीचे गई। और मैंने सर ऐसे, मैंने आपको सही बात बताऊं, ये पैटर्न काफी टफ, और यदि आप पिछले साल से कंपेयर करें 2018-19 तो दिस इज द टफेस्ट पेपर्स। Got it. So, Vaibhav, congratulations for making it through in the toughest paper. So, but yeah, Vaibhav, your thoughts on the same? सर इस बार का पेपर तो था टफ, मतलब जैसे एक दिन पहले सुबह एस्ट्रोनॉमी का भी पेपर था, उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर था। तो बच्चे को पहले 3 घंटे वो एस्ट्रोनॉमी के पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो सर जैसे मेरा फोकस केमिस्ट्री पे था तो मैंने उस हिसाब से किया कि एस्ट्रोनॉमी का पेपर दिया नहीं इस बार, क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोनॉमी का भी देता तो पहले ही मेरा माइंड काफी थक जाता, केमिस्ट्री को अच्छी तरह अप्रोच नहीं कर पाता। तो सर जिन बच्चों ने दोनों दिए हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज था। और ऊपर से सर इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर था वो 80 मार्क्स का था जैसे, और उस हिसाब से जो 2 घंटे का टाइम दिया था हमें, उस टाइम फ्रेम में खत्म हो ही नहीं सकता था ये पूरा पेपर, तो इतना बड़ा पेपर था। तो उसमें भी स्ट्रेटेजिकली कौन से क्वेश्चन करने चाहिए हमें, किस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हेल्प मिली। क्योंकि उसमें भी हर एक पेपर में जो 3 घंटे का था, लेकिन 3 घंटे में हर एक पेपर पूरा नहीं हो सकता था। तो उसमें भी जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वही करने चाहिए। वो प्रीवियस ईयर ने जो मदद की वो इस साल भी अप्लाई हुए थे क्वेश्चन। मेक सेंस वैभव। सो ऑलराइट वैभव, सो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा दैट व्हाट विल यू रिकमेंड to the upcoming Olympiad aspirants? So what's your recommendation to all of these aspirants of Olympiads? तो ओलंपियाड्स के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, कुछ अच्छी तरह हर एक कंसेप्ट को डीप में जाके पढ़ना होगा, और टाइम और एनर्जी आपको दोनों डिवोट करना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक अच्छा मेंटर भी आपको चाहिए होगा। जैसे विकास सर मुझे मिले, ये वेदांतु ओलंपियाड स्कूल की तरफ से। तो ये जो वेदांतु का स्पेशल विंग है, ये बच्चों को ओलंपियाड के लिए स्पेशली प्रिपेयर करवाता है। तो यहीं से विकास सर ने मुझे चुना था INCHO की तैयारी के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ वेदांतु टीम का पूरा, कि इतना अच्छा लेवल मेरा केमिस्ट्री में हो पाया। Great, thanks a lot वैभव। And on this note मैं आज ये भी बताना चाहूंगा that विकास सर, this the first anniversary of वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। So हम लोग बच्चों को प्रिपेयर तो कई सालों से करा रहे हैं ओलंपियाड्स के लिए सर, आप तो कई सालों से करा रहे हैं। But this initiative of Vedantu, which is Vedantu Olympiad School, it has just completed its 1 year, and Vaibhav is the live testimonial to the efforts of all these amazing teachers and mentors and the entire team behind preparing students for Olympiads। और हम लोगों का एक ही सपना है कि to win glory for India at the international stage। And Vaibhav, pressure नहीं है, but a positive inspiration for all of us and expectation in a very positive way कि आप इंडिया के लिए लॉरेंस लेके आ पाओ, आप इंडिया के लिए ग्लोरी विन कर पाओ, और आप बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन पाओ कि वो इस लेवल पे प्रिपेयर करें, right? So India has to shine, right? And through you, young, wonderful brains, amazing. In the end,
वैभव, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, इन योर आईज, in what way was Vedantu platform meaningful and valuable for you, or different for you in the entire this online learning ecosystem? फिर इस साल जैसे ऑनलाइन ही सब कुछ, सारे इंस्टीट्यूट्स भी ऑनलाइन चले गए थे, तो पहले तो थोड़ी क्लास में जैसे ऑफलाइन में पढ़ते थे तो क्लास जैसा लगता नहीं था इतना। लेकिन जब से वेदांतु पे जैसे ज्वाइन किया था मैंने, तो सर जो थे विकास सर, वो एकदम हमें क्लास जैसे ही पढ़ाते थे पूरा। उसी एग्जैक्ट टाइमिंग्स होती थी हमारी हर रोज। उसी में आपके सर अच्छे सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर करते थे, और साथ में जैसे वेदांतु रिकॉर्ड भी करता था लेक्चर्स। तो जैसे कोई टॉपिक मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है तो मैं प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी देख सकता था जो सर ने पढ़ाया था, ताकि वही दोबारा क्लासरूम वाली फील में पढ़ सकूं। तो उस हिसाब से वेदांतु ने तो सर काफी अच्छा सिस्टम डेवलप किया हुआ है ऑनलाइन लर्निंग का। और इसी ऑनलाइन लर्निंग से सर ओलंपियाड क्रैक कर पाया मैं इस साल। वो तो काफी मतलब अच्छा है ये सिस्टम। Thanks, Vaibhav. Vikas sir, your thoughts, any thoughts which you want to share? मैंने तो सर आगे कहा कि विदाउट वेदांतु प्लेटफॉर्म, विदाउट वेदांतु सिस्टम की सपोर्ट के बिना तो इतना अच्छा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। ये तो सिस्टम की ही सब सपोर्ट है। और मैं तो कहूँगा सर कि ऑनलाइन में हमने फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा रिजल्ट लिया वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया सर। ये तो सर पूरे सिस्टम को ही मैं इसको कहूँगा कि So amazing. Thank you. So on behalf of Vaibhav and Vikas sir, I would like to congratulate the entire Vedantu team as well, जो कि ऑनलाइन रिमोटली वर्क करके इस लेवल तक चीज़ों को लेके आ पाए कि we are able to help bright students like Vaibhav to achieve this level of glory. So best wishes Vaibhav ahead. We wish that आप इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के लेवल पे जाओ, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो, आप इंडिया के लिए ग्लोरी एंड लॉरेल्स लेके आओ। एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर यू विकास सर, for all your amazing hard work. You are an example of what the mentorship and teaching really means, and what is the hard work that a teacher puts into a child, behind a child. So amazing. So lots of gratitude and sincere thanks to you Vikas sir as well. So on that note बच्चों, I hope आप लोगों ने आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, आपको इंस्पिरेशन मिला होगा, एंड आप भी आगे कुछ अच्छा और जबरदस्त अचीव करने की तरफ हार्ड वर्क करोगे। सो फ्रॉम द एंटायर वेदांतु टीम, ऑन बिहाफ ऑफ वैभव, वी वुड विश all the very best to all of you. Be safe and take care, keep your families also safe. Vaibhav, would you like to wish these children who are watching this session? Yes sir, आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने आने वाले सारे एग्जाम्स और सभी गोल्स अचीव करने के लिए। बस मेहनत करते रहो, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सर विकास सर, आपके कुछ वर्ड्स बच्चों के लिए? मैं तो इतना ही कहूँगा सर कि कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता। यदि आपको अच्छा सिस्टम पर मिले और अच्छी कोचिंग मिले, यदि आपकी अपनी बच्चे की और टीचर की फाइन मेहनत होगी सर, उससे रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। ओलंपियाड भी कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है सर जितने हमें बताया जाता है, इतने नहीं होते। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो ओलंपियाड भी इजीली क्लियर है। ऑसम, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। एंड कई बच्चों के आई एम श्योर वेदांतु ओलंपियाड स्कूल को लेके क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे। सो इन द डिस्क्रिप्शन we will share the information about Vedantu Olympiad School and how can you contact us. Chaliye, all the very best. Bye bye. Best wishes Vaibhav. All the very best to you. Thank you sir.